3 questions from each one of you. If you are able to answer 3 questions each, free period. And you won't believe 8 बच्चे थे क्लास में से, सिर्फ संजय को क्वेश्चंस आते थे. All of them they got 0 on 3. मतलब इतना बुरा हाल है तुम लोगों का. You don't know BST? Yes, BST is very interesting. Interesting क्या? You don't know it. Free period क्या करोगे समरीत? There is no one around with whom you hold it down. No. Pen. Pen मेरा. No pen. I misplaced my pen today. He wanted to go home early today. He has lost his keys. कहाँ? You already what is to be done for MCQs. Why don't you write it? You don't even tick mark it in your books. Take out your pens. Take out your registers. See, tomorrow is online. We are meeting today only before the exams. और online में वैसे भी you might be sleeping. मैं assurity नहीं देती you will be listening or not. BST की book नहीं है तो लिख लो. Write it और tick mark करो अपनी book में. Take this. Page number 1. Okay. Only I am focusing on MCQs. तुम्हें चाहिए मुझे नहीं चाहिए. मैं तो अपनी बुक पे पेन सबसे Okay. So, am I audible, everyone? Yes. Yashika, she left. Last period में start करें class, although it's 12:28. Yes. So when I'll just turn the pages and I'll let you know what is to be done very thoroughly for MCQs, right? Yes. Now when you're doing this chapter, you should know the definition of business very carefully. You should able to read a case study, so you should be able to read the case study and then identify whether it is business or not. So all these points, I'm not focusing on subjective. मैं ये नहीं बोलूँगी ये subjective के लिए भी important है क्योंकि मुझे subjective में मगर because my focus is MCQs, you will lose marks very quickly in MCQs. When you're doing objectives, I'm not telling ये पढ़ना है या नहीं पढ़ना. नहीं वाला कुछ नहीं. मैं ये बता रही हूँ इसमें क्या चीज़ तुम्हें आनी चाहिए. When you're doing multiple objectives of business, you should actually know whether I'm giving you a case study. वो case study social में जा रही है, economic objectives fulfill हो रहे हैं या environment objectives fulfill हो रहे हैं. That is what you should know. अगर मैं कुछ society के लिए कर रही हूँ, that means I am fulfilling social. अगर मैं एनवायरनमेंट का नुकसान कर रही हूँ या एनवायरनमेंट के फायदे के लिए कुछ कर रही हूँ, जैसे मैं बिजली बचा रही हूँ या फिर प्लास्टिक का कम यूज कर रही हूँ, दैट इज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट ऑब्जेक्टिव्स आई एम फुलफिलिंग. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो हम ओवरऑल देश के लिए, दे आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. व्हाई डू यू गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन देम? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वेयर इट इज लीडिंग एक्चुअली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. तुम्हें करनी आनी चाहिए कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स में है, इकोनॉमिक में है. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स हैं व्हेन वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर एम्प्लॉयज. उनको सैलरी अच्छी दे रहे हैं, उनकी इंश्योरेंस करा कर रख रहे हैं, उनकी हेल्थ की ध्यान रख रहे हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज, वॉशरूम्स अच्छे दे रहे हैं, पानी की फैसिलिटीज अच्छी दे. दे आर कॉल्ड. खाना नहीं उन्हें देना, खाना तो एम्प्लॉयज खुद लेकर आते हैं. बट देन हाँ चलो ठीक है.
हाँ अकोमोडेशन दे रहे हैं, रिम्यूनरेशन पर्क्स दे रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज दे रही हैं, ठीक है. सो दे आर फॉलोइंग अंडर ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स. ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स मीन्स जो हम अपने एम्प्लॉयज के लिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. सो अंडर दिस केस स्टडीज कैन बी आस्क्ड. मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें कैसे क्या चीज पढ़नी आनी चाहिए एमसीक्यूज के. So classification of business activities. When you are doing classification of business activities, how you are doing it? You should actually know the definitions. अगर मैंने आपको सिर्फ ये बोल दिया that it is I am giving you a question on paper industry. No, because we started early. They are joining now. So you should know when I'm talking about, let's take it an example. अगर मैंने आपको example दिया है कि extraction हो रही है, so okay, when I'm saying you any type of industry, if I'm saying you कि कोई extraction industry, तो तुम्हें पता होना चाहिए extraction industry actually it is a primary industry. किसके अंडर आ रही है? वो क्लासिफिकेशन का ये जो चार्ट है ना, this you should know. The chart is there ना in the end. ये देखो, it's on page number 29. 20 मेरी बुक में 29 है. क्लासिफिकेशन ने ये नीचे चार्ट बना हुआ, दिस इज व्हाट आई एम शोइंग यू. दिस यू शुड नो इट. एंड देन इफ आई से यू पेपर इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री कैसी है, सोप कैसा है, क्रूड ऑयल कैसा है, या दिस यू शुड नो वेदर इट इज एनालिटिकल, वेदर इट इज सिंथेटिकल, वेदर इट इज असेंबलिंग और वेदर इट इज एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक. समझ आई? अब मैं अगर आपको कहूँ आता कुछ नहीं है धनंजय, अगर मैं आपको ये कहूँ कि हाँ पोल्ट्री फार्म्स में कोई डील कर रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज इन्वॉल्वड इन? प्राइमरी में कौन सी? पोल्ट्री फार्म्स, जेनेटिक. सो देयर कैन बी टू ऑप्शंस. वहां हो सकता है आपको जेनेटिक ऑप्शन दियो, हो सकता है आपको प्राइमरी दियो, एक्सट्रैक्टिव नहीं है. हाँ, वो कंफ्यूज करने के लिए तो कुछ भी होगा. सो इफ आई गिव यू, मान लो सोप दे दिया मैंने, सोप में आप यू शुड नो सोप कैसे बन रहा है. यू आर मिक्सिंग मटेरियल्स इनटू इट, केमिकल्स इनटू इट, तो क्या बना? अलग अलग जगह से सामान इकट्ठा हो रहा है, आईपैड इकट्ठा असेंबल किया जा रहा है, कंप्यूटर है, ये स्पीकर्स हैं, असेंबली इकट्ठा किया जा रहा है. हाँ, फोन है या जैसे कंप्यूटर है, कीबोर्ड कहीं से बनकर आ रहा है, या जैसे कार है हमारा, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग हिस्सों से बनकर आ रहे हैं. तो वो सब क्या, वहाँ से कुछ आया, यहाँ से कुछ, कोरिया से कुछ, जापान से, सब कुछ इकट्ठा एक जगह पे होकर फिर उसको असेंबल इकट्ठा कर दिया जाता है, पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है, फिर हमें बेच दिया जाता है. इसको इंडस्ट्री को कहते हैं असेंबलिंग. जिसमें जैसे सोप अकेला एक चीज से नहीं बन रहा, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स मिक्स करके बनाना मीन्स सिंथेटिक. Got it now? This is how you can be asked for case studies. Okay. So for commerce, when I am saying you this, see how can a question, I can give you a case study जिसमें मैंने बोला उसने ये सर्विसेज यूज की, ये सर्विसेज यूज की, ये सर्विस यूज की, उसने कौन कौन सी हिंड्रेंसेस रिमूव की. सी अगर आप वेयर हाउस की फैसिलिटी यूज कर रहे हो, योर नेम इज वरुण, राइट? सो वरुण, व्हेन यू आर यूजिंग वेयर हाउस फैसिलिटी, व्हाट यू आर डूइंग इज टाइम. अच्छा, हिंड्रेंस, आई थॉट यू आर आस्किंग मी टाइम. सो लाइक दिस, वो आपके रास्ते में बहुत सारी बिजनेस में रुकावटें आती हैं. हिंड्रेंस मीन्स ऑब्स्टेकल्स या रुकावट. वो आपने जब वेयर हाउस में सामान जोड़कर इकट्ठा स्टोरेज करके रख लेते तो वो क्या है, ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको टाइम वेस्ट नहीं. आप उस टाइम प्रोडक्शन में थोड़ी यूज स्टार्ट करोगे प्रोडक्शन, तो उससे जमा करके चीज़ें रखी हुई, स्टोरेज करके रखी हुई वेयर हाउस. और आपको पैसा कहाँ से अरेंज होगा? बैंकिंग सेक्टर आपको अरेंज करके दे रहा है. आपका रिस्क कौन कवर कर रहा है? वो आपकी कौन सी
प्लेस की हिंड्रेंस है, पर्सन की हिंड्रेंस है, ये दिस यू शुड नो एक्चुअली फॉर केस स्टडीज. केस स्टडीज में डायरेक्टली क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाएंगे. So like this you should know what type of hindrance is being removed here. मेरे को नहीं पता बट यस पेपर अलग अलग है. तुम्हें इकट्ठे दे देंगे या अलग अलग देंगे दैट आई डोंट नो. अलग अलग विद द ब्रेक. क्वेश्चन पेपर तो तुम्हारे पास दोनों दे दिए जाएंगे ना. क्वेश्चन पेपर दे दिए गए एंड देन and on the question paper itself you have to tick mark. MCQs भी. इससे अच्छा why do you want question papers at home? इससे अच्छा तो question paper पे tick mark. जैसे बचपन में ऐसे ही होता था. Okay, so coming up with then I can give you a case study like this कि अगर सुतेज है वो क्या काम कर रहा है, बल्क में सामान किसी से खरीद रहा है, किस तरह if I say you somebody leaking the information, what type of risk is that? Human risk. एक बार ये करने दो मुझे. फिर अगर मैंने कहा कहीं अर्थक्वेक आई उसके कारण बारिश ज़्यादा होगा, नुकसान हो गया, फिर नेचुरल रिस्क. देन इफ आई से गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल गई, गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर बदल गया, देन इकोनॉमिक कॉज. देन इफ आई से कि मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई, मशीनरी खराब हो गई, physical. So like this a question can be drafted of each one of them. You should know how to answer that. Yes, online, are you getting it? Yes, ma'am. Do we have Nandana in the class? No, ma'am. आपको आंसर देने. चलो आ जाओ, सुतेज की जगह पे आप आ जाओ. 3 questions to you only. So ones who will be answering, they have to on their cameras and then answer. Okay, Dhananjay, pay attention. Ma'am, not anything about sole proprietorship and second chapter. मैं पूछूंगी तो 5 चैप्टर्स में से पूछूंगी, नहीं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का थोड़ा कम आता है, बाकी सब का. I will ask you from 5 chapters. 3 तो क्वेश्चंस पूछने हैं, उसके लिए भी आप बोल दो ये चैप्टर नहीं पूछना, ये चैप्टर नहीं पूछना. मतलब एग्जाम में नहीं भी पूछेगी ना मैम. I want complete confidentiality, complete secrecy in my business, and I don't want to share my profit with anyone. What type of business I'm talking about? मैं बोला था. Finger on your lips. What type of organization am I talking about? प्राइवेट. Private तो हो गया, आगे. Sole proprietorship. कौन था ये? Who answered this? मैम मैं पवन पारिक. पवन पारिक आपसे नहीं पूछा गया था. Which is next is your turn now. What type of organization, Varun? What type of organization am I referring to when I say that all the partners have limited liability except for one? Fixed. I feel like I am really upset. Ma'am, but you are asking from that chapter only, ma'am, which I told you that chapter is not. मगर मैंने क्लास में पढ़ाया है ये. मैं तब मैं नहीं था. LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कौन सा चैप्टर पढ़ा है? मैम बाकी सब पढ़े ये सोल प्रोप्राइटर इसमें ये. मगर वही 23 मार्क्स का आ रहा है. मैम वो करना बाकी है रिवाइज.
80 में से that is of 23 marks. सेकंड चैप्टर मैम बाकी उसके अलावा Okay. Which type of account? What is the account I am referring to when the rate of interest is highest in that? कौन से account? गेट और We get फिक्स्ड डिपॉजिट fixed deposit. Okay. When I give you a case study, a person. मैम वो जो आपने लिमिटेड पार्टनरशिप वाला बोला था उसका आंसर क्या बोला था? LLP है, limited अच्छा liability ठीक है, partnership. हाँ हाँ वही पूछ रहा था. So you have to identify the principle. अगर एक वेयर हाउस पे उसने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, आग लग गई, he got the insurance claim, and then that person he sells the burnt goods. Which principle is applicable? Does he has right on the burnt goods? Yes or no? नो ही इज नॉट द राइट बिकॉज़ वो मत बताओ मेरे को, प्रिंसिपल बता दो क्योंकि MCQ है, इतना लंबा आंसर नहीं चाहिए मुझे. एक सेकंड मुझे सारे एक बार लॉ प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन सब्रोगेशन. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है. I was doing it from my question paper when I was doing in Amartya, and the child was so honest. He said, "मैम आपकी स्पेक्स में दिख रहा है." मैंने अपना क्वेश्चन पेपर खोला तो मेरे को लगा चलो उसमें से देख के थोड़ा सा I should at least ask them. संजय, मैम आपकी स्पेक्स में सारे संजय का इसलिए बता दिया हमें भी आपका क्वेश्चन पेपर में से पूछना करो मैम चश्मे में दिखेगा हमें आप करना है. पता चलो उसमें से मैं कितना उसमें से नहीं मैं पूछ सकती. आई कैन नॉट आस्क यू डायरेक्टली क्वेश्चंस. हाँ मैंने ये देख लिया कि हाँ उसमें कुछ अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट पूछा, आई कैन मेक माय ओन केस एंड आस्क समथिंग लाइक दैट. आई कैन आस्क यू डायरेक्टली फ्रॉम माय क्वेश्चन. ओके. यस. रिवॉर्ड फॉर धनंजय, द रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज कॉल्ड. कुछ नहीं आता. रिवॉर्ड फॉर प्रोफेशन इज फीस. एम्प्लॉयमेंट सैलरी उसको तो लॉयर को क्या मिलता है? लॉयर को सैलरी मिलेगी, उसकी तो अपनी फर्म है, उसको फीस मिलती है अपनी सर्विसेज से. टिम्बर इंडस्ट्री इज व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री? प्राइमरी, सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग? सेकेंडरी. लकड़े से कुछ बनाए प्राइमरी. डायरेक्ट मिल जाए क्या हो गया है तुम लोगों को? आई डोंट नो, यू पीपल हैव नॉट स्टडीड एट ऑल. अच्छा वो एक एक छुट्टी पे डिपेंडेंट हो तो दैट इज व्हाट यू. वो एक छुट्टी आएगी पढ़ लेंगे. Okay. When I'm saying Adidas, what type of enterprise am I referring to? Adidas. Adidas. Puma. What type of enterprise am I talking about? मल्टीनेशनल कंपनी. Global. Multinational companies. ऐसे क्या? क्वेश्चन नहीं मैंने वापस क्वेश्चन पूछा था तो Adidas पूछा. Okay. When I'm saying Starbucks and Tata's collaboration. जॉइंट वेंचर. मैम जेवी तो मैम लेकिन आ नहीं रहा है ना एग्जाम में. क्या नहीं आ रहा? जेवी. MCQs में आ रहे हैं सब. ओके. There is nothing omitted for the MCQs, only for the subjective you are not getting it. Joint venture, दोनों jointly काम कर रहे हैं. Collaboration. Joint venture. मारुति सुजुकी क्या है? Okay. What is P3 stands for? P3. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. Okay. Example, okay. If I ask you, there is a highway that is connecting Haryana till Delhi.
Kundali Manesar Highway. What type of enterprise is that? नेशनल Pro- वो मेरी ग्रीन वाली बुक में था, इसमें नहीं. हाईवे कैसा वो नहीं बताना हमें, P3 है या जॉइंट वेंचर है, क्या है वो बताना है. P3. It's a P3. Naranjay, did you listen that? मैं वो पूछ रहा था. Your name is कवच ना? अभी कवच की बारी. अब कवच पहन ले, तेरी बारी है. इसलिए मैं अपने को नहीं मारेंगे. मैं मीको की उठ खोलने के लिए बोला. What is double? What is double insurance? Ma'am, when we take insurance from two parties and pay the मैम जैसे एक LIC लिया और एक pay the Axis insurance. बैंक लिया. It's reinsurance. वापस से रिन्यू करवाना. हाँ? रिन्यू करवाना. उनको एक्सपायरी हो जाएगा तो Reinsurance कौन ले रहा है? डबल इंश्योरेंस तो मैंने ली, अपने वेयर हाउस पे ले ली. इसकी कोई मैम. What is reinsurance, everyone? अभी देखना आंसर. Ma'am, renewal of the insurance which we had taken already. कौन बोला? नमन बोला. नमन. ना when an insurance company के साथ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, लाइक इफ यू सपोजिटली आई हैव इनकी कंपनी के साथ मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, बट आफ्टर टेकिंग इट तो मनन नहीं पार्थ की इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिस्क ले लिया, मे बी इट इज़ 100 करोड़ और 200 करोड़, बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी का. तो उसको लगता है कि अगर बाई चांस ये रिस्क हो गया एंड आई विल नॉट बी एबल टू पे, तो इंश्योरेंस कंपनी किसी और इंश्योरेंस कंपनी से उसी पे समझ आए वो क्यों लेते हैं, ताकि उनको लगता है कि बहुत बड़ा रिस्क है तो हम उसको थोड़ा सा कवर करें. मगर उस केस में रिदम के साथ और मेरा they have taken a insurance policy from Rhythm's company. Now there is no connection between me and Rhythm because they have taken a policy from the insurance company has taken. हाँ, मतलब मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जब भी कैंसिल होगा ऑटोमेटिकली दैट विल बिकम कैंसिल, राइट? So I have to pay them the premium, they will pay the premium to the net. उनकी ज्यादा बड़ी वाली कंपनी होगी ना, जैसे इनसे, क्योंकि Yes, वो हो सकता है वो सिर्फ ये है कि उन्होंने अपना लॉस को थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की. Okay, now the next question arises is कवच फॉर यू. अगला प्रश्न पूरे 5000 हो गए. what type of services is DTH? सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस करोगे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स करोगे. कल पूछना मैं एक से एक सारे 100 के 100 Tomorrow is ऑनलाइन होगा. this is the last day today we are doing revision. अरे एग्जाम के बाद पूछना. Yes, Manan. What does VSAT stands for, Manan Lat? What, ma'am? VSAT. Okay. What does VSAT stands for? What does SEBI stands for? Aperture terminal. What does virus stands for? Like this? Securities Exchange. Here are DTH. Suni? Yes, ma'am. Yes, Kunsuni. If one business organization is taking, let's say Hyundai is buying the
steering wheels from another company. What type of transaction am I referring to? दो companies में transaction हो रहा है, ये किस तरह का transaction है? कुन सोनी, खुश राजदे, मिलेगा ही नहीं। तुम चैप्टर बता दो, मैं तुम्हें मान जाऊंगी। I asked him. तुम बोला, तू नहीं बोला। अच्छा। धनंजय would have told, I would have agreed. क्यों? कहाँ customer deal कर रहे हैं? See, here you have to see with whom they are dealing. The first party is the Hyundai. They are taking it from another business organization. It is B2B. कम से कम you will have 2-3 questions on this only B2B, B2C. खरीद रहा है मैम वो उसके लिए कस्टमर है, मगर अपने आप में वो Yes, ma'am. So it's B2B. See, if I'm saying Auto Corps and Hyundai, they're two business organizations. अगर Apple Foxconn से ले रहा है या Pegatron से ले रहा है, they're two business units. हम तो वो जो जिसे खरीद रहे हैं वो अपना फायदा नहीं देखेगा। वो ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस में, कौन सी दो पार्टीज आपस में डील कर रही हैं. दैट इज व्हाट वी आर रेफरिंग टू व्हेन आई एम सेइंग समवन इज सेलिंग गुड्स ऑन OLX. नाउ व्हेन यू आर पुटिंग योर iPhone on sale on OLX, I am buying it. We are directly in conversation with each other. हम ऑनलाइन चैट कर रहे हैं या फोन नंबर्स शेयर कर रहे हैं. So what type of transaction we are doing? There is one customer dealing with another customer. तो हमें देखना है ट्रांजैक्शन शुरू कैसे हुआ. That comes at the first position, and to whom it is given, that comes at the second position. Got it? Now, if I say your photographs are Facebook photographs or Instagram photographs are being taken by Google. They like your photographs, they approach you that we like your photographs, we want to take these photographs. कितने में बेचोगे? What type of transaction? शुरुआत करो ना 20 लाख से। It is from the customer to the business. नहीं हुआ. नहीं डायरेक्ट। पेन दो. कैसे एक हुआ? See, what is your name? I forgot. What is his name? हाँ, निकित. देखो. See बेटा. देखो. अगर हम नाइकी कहीं से सोल खरीद रहे हैं शूज के, ना ये जो सोल इकट्ठा कर रहा है या बना रहा है, ये भी तो अपने आप में बिजनेस यूनिट ही है. So ये भी business unit है. So what type of transaction is getting done between B business to the business? Now if I say ATM machine उन्होंने लगा दी बैंक वालों ने. Now who has set up this machine? Business. दे किसको रहा है? Customer. Now OLX पे your मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. Okay, so I'll be little louder. Okay, your photographs. Excuse me, ma'am. It can be anything. It can be your आपका कोई blog page है, उस पे Excuse me, something ma'am. they like it. It can be anything. Your articles. What happened? It can be your articles. मैम A company वॉइस likes it. क्रैक हो रही है आपकी. अगर जो See here who is the first person writing this? It's you. Customer data किसको? ये आराम से करना cases ऐसे. There are 2 or 3 cases are there. So just be careful. First see who is giving to who. Got it? हम अगर कंपनी से कंपनी से कंपनी हो रहा है. तो B2B। दो बिजनेस हाउसेस. डायरेक्ट कस्टमर सिर्फ हम हैं जो अपनी डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए उसको यूज. C2C